Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter development and political theory, and under this chapter we were discussing the challenges of development, and in this discussion we have seen that what are the challenges uh, especially among the developing countries of the world. And in this regard we have seen the developing countries are those countries which got independence after the Second World War. The countries of Asia and Africa, which were under the colonial rule of Western countries, and they get independence after this Second World War. And under the colonial rule, these countries were exploited economically, and that is the reason of their economic backwardness. So after getting independence, the one of the most important challenge in front of these countries was to do economic development, rapid economic development. And for that purpose, what we done, most of the countries followed the Western model of development, because जिस तरह से वेस्टर्न कंट्री ने डेवलप किया था, हमने उसी को ऑलमोस्ट अडॉप्ट किया. एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, देन एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए एफर्ट किया गया, एजुकेशन सेक्टर पे भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया गया. ऑल दिस वाज डन in order to bring economic development. And in our country, especially if we see what happened in our country, we have gone for planned economy. That was the very important thinking of Pandit Nehru, that by adopting this planned economy we can achieve economic development. And under this planned economy we have developed so many mega projects like dams, then steel plants were established, then there was fertilizer industry, then advancement in technology. Everything was focused under this planned economy, and it was hoped by our economists and political leaders. It was the thinking that if we achieve economic development, if we get higher economic growth rate, तो what will happen कि जो भी benefit होगा हमारी इकोनॉमी को, उसका जो फ़ायदा है that will reach to the poor people also. तो हमारा focus जो था, that focus was not on the removal of poverty, बल्कि focus was on economic development. And it was hoped कि economic development will reduce poverty automatically. ऐसा होप करके ही सारा कुछ किया गया था. And we were discussing all these things, and now I'm continuing from that discussion, that it was also hoped that the emerging prosperity would gradually trickle down to the poorest section of the society and help to reduce inequality. It was the hope. That is why the main focus was on economic development. The main focus was on different important projects like dams and setting up of steel plants, and then technological advancement. All these things was done under the planned economy. And we see a great deal of faith was placed in adopting the latest discoveries of science and state of the art technology. Science and technology पे हमने काफ़ी focus किया, because we wanted to achieve a higher economic growth rate. And new educational institutes were also established, like the Indian Institute of Technology, and there was collaboration with advanced countries in order to have access to their knowledge become a top priority. तो हमने जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, उनके जो भी एडवांस कंट्रीज़ थे, उनके साथ कोलैबोरेशन किया, कोऑपरेट किया, ताकि हम उनकी जो वहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है, उस एडवांसमेंट का हम फ़ायदा उठा सकें और अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकें. इट वॉज बिलीव दैट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट वुड मेक द सोसाइटी मोर मॉडर्न and forward looking and set it on the path of growth.
तो हमारा यही सोचना था कि अगर हम जिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को फॉलो कर रहे हैं उससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी जो है वो मॉडर्न बन जाएगी और फॉरवर्ड लुकिंग बन जाएगी एंड इट विल मूव ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ. तो इट वॉज होप्ड बट वॉट वी फाइंड कि ये जो होप था वो पूरी तरह से सही नहीं हो पाया. इफ़ वी सी द एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट 70 years, what we find is still we have the problem of poverty, still we have the problem of unemployment, still we have the problem of gap between the rich and the poor. तो प्रॉब्लम्स अभी भी सॉल्व नहीं हो पाए हैं. जो इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत हो गया, ग्रोथ रेट भी हमारा हाई है, अच्छा जा रहा है, बट इस ग्रोथ का बेनिफिट, ये जो सोचा गया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और उसका बेनिफिट अपने आप नीचे के सेक्शन में आ जाएगा, दैट कुड नॉट बी हैपेंड. सो व्हाट वी फाइंड कि जिस मॉडल को हमने अडॉप्ट किया उसकी अब काफ़ी क्रिटिसिज्म होती है. सो द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय इंडिया and other countries has come under a great deal of criticism over the years, and this has led to some rethinking about the goals and process of development today. So there is need to rethink. हमने जो adopt किया उसमें कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी थी. That is why our economy is not problems have not removed. Still our economy has so many problems. Just now I told you the problem of poverty, the problem of unemployment. Not only this, we can say that still in our country there are so many people who are not able to fulfill the basic needs of their life. There are people who are malnourished. Still in this age of 21st century, there are deaths by starvation in our country. Starvation से, भूखमरी से लोगों की जान जाती है आज के समय में भी. तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ आवर इकोनॉमी. हम नहीं कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है. जो ग्रोथ का जो फ़ायदा मिलना चाहिए था, दैट इज़ नॉट देयर. सो इट इज़ अंडर क्रिटिसिज्म. एंड नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ डेवलपमेंट मॉडल्स. ओके, सो क्रिटिसिज्म ऑफ डेवलपमेंट मॉडल्स. Critics of development have pointed out that the kind of development models which have been adopted in many countries have proved very costly for the developing countries. जो हमने मॉडल अडॉप्ट किया, दैट मॉडल हैज़ प्रूव्ड वेरी कॉस्टली. मीन्स कि इस मॉडल से जो बेनिफिट हमने सोचा था वो बेनिफिट तो नहीं मिला, बट इट कॉज्ड सम हार्म्स. दैट इज़ वाई इट प्रूव्ड वेरी कॉस्टली टू अस. ओके, the financial costs have been enormous, putting many countries into long-term debt. In order to gain economic development, what was done? The countries, the developing countries of the world, they took loans from the international financial institutions. They took loans from World Bank, IMF. Not only this, they took loans from other advanced countries, and because of these loans, now they are in the debt. They are in the enormous debt, long term debt. तो जैसे हम एक इंसान जिस तरह से फंस जाता है डेब्ट ट्रैप में, उसी तरह से कई कंट्रीज़ हैं जो कि डेब्ट ट्रैप में फंस चुके हैं. सो दैट इज़ वाई इट प्रूव्ड कॉस्टली कि हमने लोन लिया फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट, बट दैट लोन इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर द कंट्री. Africa is still suffering from the enormous debt which it ran up by borrowing from the richer countries. The gain in terms of growth have not been commensurate, and poverty and disease continue to plague the continent. So अगर हम अफ्रीका की कंडीशन देखें तो अफ्रीका इज़ द पुअरेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एंड वहाँ पर जितनी पॉवर्टी है, नॉट ओनली पॉवर्टी, द प्रॉब्लम इज़ कि हर तरह के ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ नॉट देयर.
देन हेल्थ एंड हाइजीन की जो कंडीशन है दैट इज़ वेरी पुअर, दैट इज़ वाई डिजीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, कितने कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं बिकॉज ऑफ डिजीज़। तो ये जो चीज़ें हैं, क्या हुआ पिछले 60-70 साल से दीज कंट्रीज आर इंडिपेंडेंट, दे आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट द रिजल्ट इज नॉट फेवरेबल। रिजल्ट तो ये हो रहा है कि उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। दे आर इन द डेट ट्रैप, they are facing the same problem of poverty, malnourishment, unemployment. So what is the benefit of adopting this model of development? Now we will see the social cost of development. The financial cost तो हमने देख लिया। financial cost क्या है? हम डेप्ट में फंस चुके हैं बिकॉज हमने लोन्स लिया है और उस लोन से हमने जो भी काम किया, अब हम वी आर नॉट एबल टू रीपे द लोन्स। तो वो जो लोन का जो ट्रैप है वो हम पे पूरा सिकंजा जो उसका है वो कसा हुआ है। एंड नाउ वी विल सी द सोशल कॉस्ट, जो डेवलपमेंट के जिस मॉडल को हमने अडॉप्ट किया उसके कारण सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट सोशल कॉस्ट वी आर पेइंग because of adopting this model of development. This model of development has also had high social cost. A large number of people have been displaced from their homes and localities due to the construction of big dams, industrial activities and mining activities or other projects. I told you earlier also about this problem. This is one of the most important problem कि आपने जो गवर्नमेंट ने has taken the decision regarding developmental activities like construction of dam. It has been decided by the government कि कहाँ पे construction करना है, क्या करना है. But because of this construction of dam, it is no doubt people will a group of people will get benefit. That group of people can be the larger group of people who is getting benefit from these dams, क्योंकि इससे एग्रीकल्चर को भी बेनिफिट होता है, इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होता है, रूरल एरियाज भी बेनिफिटेड होते हैं, अर्बन एरियाज भी बेनिफिटेड होते हैं, बट देयर इज अ ग्रुप हु इज पेइंग द कॉस्ट फॉर ऑल दिस डेवलपमेंट एक्टिविटीज। और वो ग्रुप है जिनको कि डिस्प्लेस होना पड़ता है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज डैम्स, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी फैक्ट्रीज, बिकॉज ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़। तो इस तरह की जो भी हम डिसीजंस गवर्नमेंट ले रही है उसके वो इट इज़ नॉट कंसिडरिंग कि किसको बेनिफिट हो रहा है, किसको उसका बर्डन लेना पड़ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल कॉस्ट विच वी आर पेइंग by adopting this model of development, जिसमें कि लोगों का कोई participation नहीं है। the government is taking decision regarding the life of the people कि आप कैसे किसी को displace करने का decision ले सकते हैं unilaterally without taking into consideration the view of those people who are going to be displaced। आप उनके व्यू को ले ही नहीं रहे हैं, उनके विचारों को, उनके क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आपने कुछ भी साथ मिल करके उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ आपने कुछ भी डिस्कस नहीं किया, यू हैव टेकन द डिसीजन। तो दिस इज द सोशल कॉस्ट जो डिस्प्लेसमेंट होता है लोगों का, बिकॉज दिस डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी कंपनसेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हम मनी देकर के पैसे देकर उनको कंपनसेट कर रहे हैं तो दैट कैन नेवर बी एक्सेप्टेड, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज नॉट ओनली मॉनेटरी लॉस, दैट इज सोशल लॉस, दैट इज कल्चरल लॉस। उनका कल्चरल लाइफ, उनका सोशल लाइफ, एवरीथिंग इज रूइंड। तो हम उसको पैसे देकर के उसका कंपनसेशन नहीं कर सकते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। So the displacement results in loss of livelihood and increase impoverishment. If rural agricultural communities are displaced from their traditional occupation and reasons, they end up at the margins of the society, swelling the large number of urban and rural people. So ये जो displacement हम कर रहे हैं, अगर ये डिस्प्लेसमेंट हम एग्रीकल्चरल पीपल का कर रहे हैं जो कि विलेज में रहने वाले, कल्टीवेशन को करने वाले पीपल हैं, अगर ये डिस्प्लेस हो रहे हैं अपने जगह से, तो हम उनको एकदम जो अर्बन पुअर होते हैं उनकी कैटेगरी में हम उनको शामिल कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की कैसी डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट है, ये कैसा डेवलपमेंट एक्टिविटी है जिसके कारण हमारा एक ग्रुप जो कि ठीक ठाक लाइफ स्पेंड कर रहा था, नाउ द ग्रुप इज फोर्स्ड टू बिकम द अर्बन पुअर सेक्शन,
क्योंकि अब वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गए, अब वो कहीं कहीं किसी अर्बन एरिया में जा करके रहेंगे, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल जिस तरह से होते हैं, जिस तरह से उनके लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ना हाउसिंग प्रॉपर होती है, ना उनकी एजुकेशन, मेडिकल केयर, कुछ भी नहीं, यानी कि दे विल गो टू द लेवल ऑफ पुअर। तो ये जो जिस तरीके का डेवलपमेंट मॉडल है, दैट इज हाईली अनएक्सेप्टेबल। इसके कारण एक ग्रुप जो है उस पर सबसे ज़्यादा बर्डन हो जाता है। दैट ग्रुप इज बियरिंग द बर्डन ऑफ डेवलपमेंट। फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जिनको नुकसान हो रहा है उनका क्या? सो ट्रेडिशनल स्किल्स एक्वायर्ड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड मे बी लॉस्ट। जो ट्रेडिशनल स्किल उन्होंने एक्वायर किया, आज उस ट्रेडिशनल स्किल की ज़रूरत ही नहीं रह गई, बिकॉज दे आर डिस्प्लेस्ड। अब उनको नई जगह में जाकर नया ऑक्यूपेशन, नई लाइवलीहुड, सब कुछ नया। तो जो उन्होंने पीछे से अपने लोकेशन के कारण, अपनी जगह के कारण, अपने एंसेस्टर्स से जो कुछ भी लिया, वो सारा कुछ उनका ख़त्म हो गया। देयर इज ऑल्सो लॉस ऑफ कल्चर। Loss of culture is also there, loss of occupation, loss of livelihood. So there is also loss of culture, because when people are relocated, they lose a whole way of community life. जो उनकी community life थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अब वो उनका cultural life पूरी तरह से change हो गया। Such displacement has led to struggle in many countries. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल को मार्जिनलाइज कर देता है। जो ग्रुप ऑफ पीपल अभी तक शायद वो अपना आराम से लाइफ जी रहे थे, वो मेन स्ट्रीम में थे, बट उनको जिस तरह से डिस्प्लेस किया जाता है, दे आर फोर्स्ड टू बिकम द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, क्योंकि उनको अब कहीं और जा करके फिर से अपनी लाइफ को स्टार्ट करना होगा। तो इसमें क्या होता है कि वो जो चीज़ें पहले से थी उस हिसाब से वो कभी भी नहीं आ पाते। एंड ये नहीं है कि इन चीज़ों का एजिटेशन नहीं हुआ, प्रोटेस्ट नहीं हुआ। पूरी जहाँ कहीं भी इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाए गए, वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, बहुत हाई लेवल का प्रोटेस्ट हुआ। हमारी खुद की कंट्री में नर्मदा बचाओ आंदोलन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सच प्रोटेस्ट, जिसमें कि सरदार सरोवर डैम बनने के अगेंस्ट जो लोगों का, सरदार सरोवर डैम बनने के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट था। सो displaced people may have not always accepted their fate passively. It's not कि वो चलो भाई हमें तो डिस्प्लेस कर दिया गया, जो गवर्नमेंट जो भी कंपनसेशन दे रही है, वॉट एवर इट इज़, उसको लेके हम चले जाए। ऐसा नहीं होता है कि वो चुपचाप से उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट वी सी, यू मे हैव हर्ड अबाउट द नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना, which has been leading a movement against the Sardar Sarovar Dam on the river Narmada for many years. ये इसी डिस्प्लेस्ड जो पीपल थे उनके लिए ही ये नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ था। मेधा पाटकर वॉज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ दिस नर्मदा बचाओ आंदोलन। और लेटर स्टेज में क्या हुआ कि ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन विच वॉज स्टार्टेड ओनली फॉर द कॉज of the displaced people, it took a new form, जिसमें कि इसने डैम्स को ही अपोज करना स्टार्ट कर दिया कि कंट्री में डैम्स बनने ही नहीं चाहिए, बिकॉज ऑफ डैम्स सो मेनी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड, सो देयर शुड बी बैन ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, एंड दिस मैटर वेंट इनटू सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया दैट वाज इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज डैम्स जो हैं वो डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट माने गए और हम डैम्स के कंस्ट्रक्शन को रोक नहीं सकते हैं। बट यूनिलैटरल डिसीजन शुड नॉट बी देयर। अगर ये डेमोक्रेसी है, और इस डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि रूल ऑफ द पीपल, तो ये द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन यूनिलैटरली रिगार्डिंग ऑल दीज प्रोजेक्ट्स. So we see the supporters of this big dam claim that it will generate electricity, help irrigate large areas of land, and also provide drinking water to the desert area of Kutch and Saurashtra. तो डैम्स के बनने से I told you कि बहुत फ़ायदे होते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हाइडल पावर है, जैसे पानी ऊपर से जो छोड़ा जाता है उस पानी के कारण हाइडल पावर जनरेट होता है। देन बिकॉज ऑफ डैम जो एग्रीकल्चरल लैंड है उनको इरिगेशन मिलता है, फ्लड कंट्रोल होता है। देन ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, जैसे कि खास करके अगर हम इस सरदार सरोवर डैम को देखें तो बिकॉज ऑफ दिस सरदार सरोवर डैम द ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम ऑफ सम रीजन्स विच आर वेरी ड्राई रीजन्स लाइक कच्छ एंड सौराष्ट्र, उनके ड्रिंकिंग वाटर के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए सरदार सरोवर डैम में प्रोविजंस हैं। तो इस बेसिस पे इसको सपोर्ट किया जाता है। डैम्स आर ऑलवेज सपोर्टेड। अगर हम याद करें पंडित नेहरू की बातों को तो ही टोल्ड दैट डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं तो बिना डैम्स के डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल, नॉट ओनली इन इंडस्ट्रियल सेक्टर बट ऑल्सो इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, नॉट ओनली इन अर्बन एरियाज बट ऑल्सो इन रूरल एरियाज। ये हर नीड को पूरा करता है, बट एट व्हाट कॉस्ट? जो कॉस्ट हम पे कर रहे हैं क्या वो सही है? दैट इज द क्वेश्चन। सो द अपोनेंट्स ऑफ द डैम डिस्प्यूट दिस क्लेम्स। जो अपोनेंट हैं, जो अपोज करते हैं कि नहीं डैम्स से प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ये सारे क्लेम्स को अपोज करते हैं कि डैम्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इरिगेशन हो रहा है, ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, फ्लड कंट्रोल हो रहा है। दे अपोज ऑल दीज क्लेम्स। दे क्लेम दैट ऑलमोस्ट 1 million people have been displaced। तो जो आप सिर्फ उसी पर, अगर हमें, दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग और इसी पे दुनिया चल रही है। जब हम किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ उसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, और जब हम अपोज करते हैं तो हम उसके नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं। तो अगर हम सिर्फ पॉजिटिव को ही देखें तो दैट्स नॉट फाइन। हमें उसके नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, उस पर भी फोकस करना होगा। और नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसके कारण पीपल्स डिस्प्लेस होते हैं। अगर देखा जाए तो 1 million people have been displaced because of this construction of dam. So they have lost their lands through submergence or construction and consequently lost their lives. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, कब या तो उनके लैंड को पे कंस्ट्रक्शन हो गया या वो सबमर्ज कर गया अंडर वाटर, तो वो अपने लैंड को लूज किए, और विद द लॉस ऑफ लैंड दे लॉस्ट देयर ऑक्यूपेशन ऑल्सो। Most of these people belong to tribal and Dalit communities who constitute some of the most underprivileged groups in the country. So what is the problem? The problem is कि जो benefit हो रहा है वो किसको जा रहा है? वो एक ऐसे ग्रुप को जा रहा है जो कि which is in a better position, और जो प्रॉब्लम हो रही है, जो बर्डन पड़ रहा है इस डेवलपमेंटल एक्टिविटी का, वो किस पे पड़ रहा है? वो मोस्टली ट्राइबल पीपल पे पड़ रहा है, ट्राइबल्स एंड दलित्स। And in our country, these tribals and Dalits are the poorest of the poor community. अगर poverty के अगर हम डेटा को देखते हैं तो what we find this scheduled caste, they constitute the largest percentage of poor people. अगर परसेंटेज वाइज हम देखें तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं उनमें पुअर पीपल का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। देन शेड्यूल कास्ट में उसके बाद है, और सबसे कम जो है वो अदर जो ये हैं कम्युनिटीज़ अदर देन दिस SC एंड ST। तो ये जो हमारा पहले से पुअर क्लास है उसको हम और भी पुअर बना रहे हैं। तो दिस इज़ द आप एक तरफ सोशलिज्म की बात होती है हमारे कंट्री में। हमारे पंडित नेहरू ने प्लान डेवलपमेंट को क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि हमको ऐसा डेवलपमेंट चाहिए था जिसमें कि सोशल जस्टिस भी हो। कहाँ गया सोशल जस्टिस? जब हम पुअर पीपल को ही और पुअर बना रहे हैं तो फिर हाउ कैन वी टॉक ऑफ सोशल जस्टिस? तो ये सिर्फ कहने की बातें रह जाती हैं। एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में डिसीजंस ऐसे लिए जाते हैं जो हमारा माइटी ग्रुप है उसको फ़ायदा करता है, और जो वीकर ग्रुप है उसके लिए वो नुकसान वाला होता है। So some even argue that the dam would greatly upset the ecological balance, submerging large tracts of forest. So this is the problem which is associated with this developmental activity of dam construction. And in this what we find कि जो problems हैं वो यही है कि जो decisions लिए जाते हैं वो उस ग्रुप के हिसाब से होता है जो कि हमारा डोमिनेंट ग्रुप है, और जो हमारे SC ST जैसे जो वीकर सेक्शन है उनके नीड्स की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। बट दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी।
This is not the ideal of our constitution. अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी को देखें, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियोलॉजी को देखें, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस. तो ये सब कुछ उसके अगेंस्ट है, और इसलिए इसके लिए इतनी आवाज़ उठ रही है. नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलन स्टार्ट हुए, और वो इतना पावरफुल आंदोलन था. हालांकि कंस्ट्रक्शन हो गया, बट इट मेड पीपल अवेयर ऑफ देयर प्रॉब्लम, कि किस तरह के प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं. एंड बिसाइड्स दिस व्हाट वी फाइंड कि ये जो जिस तरह का डैम्स के कारण जो कंस्ट्रक्शन होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ऑल्सो. बिकॉज क्या है डैम का बनाना, क्या है, दैट इज एन इंटरफेरेंस इन द नेचर में ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम. हम रिवर के कोर्स को चेंज कर देते हैं, जो भी नेचुरल चीज़ें उनको हम बदल रहे हैं. तो इसका जो खामियाजा है वो खुद इंसान को ही भुगतना पड़ता है. 2015 में उत्तरांचल में जिस तरह की फ्लड आया, दैट फ्लड वाज कॉज्ड नॉट बिकॉज ऑफ नेचर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन ही थे. एंड मोस्ट रिसेंटली केरला का जो फ्लड आया, दैट इज ऑल्सो इट इज सेड कि उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही हैं. तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमें शॉर्ट टर्म में डेवलपमेंट ला देगा, बट अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट हम देखेंगे तो दैट इज हाईली डेट्रीमेंटल, जिससे कि शायद पूरे जो ह्यूमन लाइफ है वही, उसका ही एग्जिस्टेंस जो है वो डेंजर में आ जाएगा because of all these activities. So this is the social cost which we are paying for the purpose of development. And now the next topic is environmental cost of development. What cost we are paying environmentally by adopting this model of development. Development has indeed caused a high degree of environmental degradation in many countries, and not just the displaced people, but all of the population is beginning to feel the consequences. Development के जो भी activities हमारे यहाँ हुए, जो मॉडल हमने अडॉप्ट किया, उसके कारण environment को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है. At the cost of environment, we have adopted this model of development. And environment is such a thing which cannot be created. It is God gifted, और अगर it is natural, और एक बार जब हम इसको ruin कर देते हैं तो फिर से इसको regain करना बहुत nearly impossible हो जाता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा human effort चाहिए, and that is not done by the people. When the tsunami hit the South and Southeast Asian coast in 2004, it was observed that the destruction of mangroves and the building of commercial enterprises along the shoreline was the reason for the greater extent of the damage caused. So, the damage caused by this tsunami, that was very because of the destruction of mangroves and building of so many commercial enterprises along the shoreline. तो we see कि जो natural calamities आ रहे हैं उसके लिए nature is not responsible. We the human beings are responsible because we are behaving in an irresponsible manner. The ice in the Arctic and Antarctic is melting because of increased emission of greenhouse gases into the atmosphere. And this has the potential to cause floods and actually submerge low-lying areas like Bangladesh and Maldives. So this is the danger which we are going to experience in very near future. क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसके कारण ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनका वो बढ़ते जा रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेज व्हाट हैपन्स कि जो टेम्परेचर है वर्ल्ड का वो बढ़ता जा रहा है. That is called global warming.
एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है कि देयर इज पॉसिबिलिटी कि जो आर्कटिक और अंटार्कटिक में स्नो है वो मेल्ट कर रहे हैं। हर साल ये हमें ऐसे डेटा मिलते हैं सुनने के लिए जिसमें कि वो स्नो जो है वो मेल्ट ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जबकि मेल्टिंग बढ़ जाएगी, इट कैन कॉज फ्लड एंड देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ कि जिस तरह के छोटे जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं लाइक मालदीव्स एंड बांग्लादेश, वो पूरी तरह से सबमर्ज हो जाएं, ज़मीन के पानी के अंदर वो चले जाएंगे। इवन हमारे मुंबई के बारे में भी ये कहा जाता है कि नेक्स्ट 50 ईयर्स में इट विल बी सबमर्ज्ड। तो दीज आर द एनवायरमेंटल कॉस्ट और अल्टीमेटली द ह्यूमन बीइंग्स आर पेइंग द कॉस्ट। तो फिर ऐसे डेवलपमेंट का व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट, जिससे कि अल्टीमेटली हमें लॉस ही होगा, हमें नहीं हो, हमारे आगे के जनरेशन्स को होगा। बट ह्यूमन इज देयर, ह्यूमन बीइंग इज देयर टू pay the cost. So this is all for today. We will continue our discussion in the next class.